Dear students, today we will discuss about Mahabir. Means it is also one of the most important subtopic of this chapter number 4, thinkers, beliefs and buildings. So now we will start about him, means about the Jainism and about the Mahabir. So beyond worldly pleasures, the message of Mahabir, that subtopic is given in our book. So now it is here given only the shortly written it is Mahabir means his birth means from 540 BC to 468 BC. Mahabir was preceded by 23rd Tirthankaras. The Tirthankaras are teachers who guide men and women across the river of existence. Means Mahabir was preceded. He was means 23rd Tirthankara after the Parshvanath. He became the Tirthankaras and also he became one of the teacher of Jaina religion. Tirthankaras means they were the teachers who guide men and women across the river of existence. मतलब ये जन्म मृत्यु चक्र क्या है, ये पृथ्वी को कैसा मतलब क्रॉस करना है, कौन सा रास्ता देकर के कौन सा सत रास्ता में ये गाइड करते थे मैन एंड वुमेन को. ये काम था तीर्थंकरस का. एंड दे वर नोन एज द one type of teachers. So here is given first, second, third means first to 24th Tirthankaras name is given here. So first Tirthankaras name was Rishabdev and at last 23rd means Parshvanath. After him preceded to Mahabir 24th number Tirthankara name was Mahabir. So now we will discuss about Mahabir because during his time that religion became famous and his birthplace Kundalgram मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इन प्रेजेंट बिहार नियर वैशाली मतलब वैशाली बिहार में मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में कुंडल नाम ग्राम नाम का एक जगह में उनका बर्थ हुआ था. एंड हिज फादर हिज नेम वाज सिद्धार्थ एंड आल्सो ही बिलोंग्स टू क्षत्रिय क्लान एंड आल्सो चीफ ऑफ द क्षत्रिय क्लान. क्षत्रिय वंश में बिलोंग करते थे. हिज फादर नेम वाज सिद्धार्थ. हिज मदर she was the Lichavi princess. His name was Trisila. So Yashoda, his wife, and also Mahabir had a daughter. At the age of 30, he left home. 30 साल उम्र में घर छोड़ के चले गए थे. And after 12 years, he attained knowledge. 12 साल के बाद after the hard penance, he attained knowledge and passed away at the age of 72, पावापुरी बिहार. मतलब पावापुरी का बिहार का पावापुरी में 72 एज में उनका डेथ हुआ था. सो ये था महावीर के बारे में एक तो इंट्रोडक्शन पार्ट मीन्स अबाउट हिम. ही इज फ्रॉम चाइल्डहुड टू मीन्स 72 years मीन्स टिल हिज डेथ. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हिज मैसेज एंड बेसिक आइडियाज ऑफ जैन फिलोसफी. So according to the Jainism means the main teachings of Mahabir are according to Jainism also according to Jaina philosophy the entire world is animated and even stones rocks and water have life. मतलब Jaina philosophy का कहने का मतलब ये है मतलब indirectly मैसेज था महावीर का मैसेज ये है कि स्टोन रॉक्स वाटर नॉन लिविंग थिंग्स में भी जान है. तो सारे चीज को ये लोग सम्मान करते थे. नो इंजुरी टू लिविंग बींग्स को तो इंजुरी करना ही उनका मतलब रिलीजन का कंप्लीटली मतलब अपोज करते थे, पूरा विरोध था. स्पेशली टू ह्यूमंस एनिमल्स प्लांट्स एंड इंसेक्ट मतलब ह्यूमन का एनिमल का प्लांट्स एंड ऐसा कि इंसेक्ट का भी ये लोग अच्छा से जत्न लेते थे. मतलब बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहते थे. नो इंजुरी टू लिविंग बींग्स. Then the cycle of birth and rebirth is shaped through karma. कर्म के माध्यम से हम लोग जैसा कर्म करेंगे ऐसा ही इंसान का जन्म और मृत्यु लिखा जाता है. ये जो साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ ये जो है ये शेप होता था मतलब आकार दिया जाता था कर्म के माध्यम से. ये था one of the most important message of Mahabir. And asceticism and penance are required to free oneself from the cycle of karma. कर्म की साइकिल से हम लोग को यदि छुटकारा पाना है मतलब आप या खुद को सेफ रखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा. इंसान को एस्केटिज्म एंड पिनांस मतलब वैराग्य और हार्ड पिनांस मतलब तपस्या ये दोनों यदि करेंगे तो ह्यूमन जरूर एक तो इंसान अपना कर्म से मतलब मुक्ति पा करके अपना ओरिजिनल ये कर्म में आकर के जुड़ेगा और भगवान के पास जरूर पहुंचेगा. तो भगवान का
मतलब जो रूप है वो लोग अलग टाइप का शेप दिए थे. भगवान मीन्स गॉड इज नॉट इन द वर्ल्ड, लाइक दैट ही इज सेइंग his philosophy, Jaina philosophy believed. So this can be, we will discuss the next slide about that. So this can be attained only by renouncing the world. Therefore monastic existence is a necessary condition of salvation. इसलिए वो लोग सोचते थे घर में रह करके कभी भी ये टाइप का एस्केटिज्म और जो पिनांस जो है ये नहीं किया जा सकता. सो यहाँ पे बहुत सारा आश्रम बना गया था जैनिज्म का, जैन फिलोसफी का रिसर्च करने के लिए. एंड मोनास्टिक एग्जिस्टेंस जो है ये जो आश्रम में ही साल्वेशन पाने का एक रास्ता है बोल के आश्रम में ही बहुत सारे मॉन्क्स एंड नॉन्स जो है ज्वाइन करते थे. और साल्वेशन मतलब ये है कि मोक्ष पाना, मतलब जीवन से मुक्ति पाना. सो दिस वाज द मैसेज ऑफ महावीर. ये जो 5 पॉइंट्स यू कैन राइट इन योर कॉपी because the message of Mahavir is also one of the question of your chapter. So the message of Mahavir, this was the teaching and this is the message. Mahavir did not believe in the existence of God. बिल्कुल भगवान है बोल के भगवान का उपस्थिति को महावीर ने बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे. And he did not believe God, that God created and controlled the whole universe. पूरा पृथ्वी का मतलब क्रिएटर जो है गॉड, भगवान ही पृथ्वी को क्रिएट किए हैं और यूनिवर्स को पूरा कंट्रोल करने वाला जो है वो गॉड है, ये बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे महावीर. ये सोचते हैं कि इट इज ओनली द वेस्टिंग ऑफ द टाइम टू रेसिटेशन ऑफ द मंत्रस और परफॉर्म द सैक्रिफाइस. ये जो मंत्र को रेसिटेशन मतलब आवृत्ति करना, ये खाली टाइम का वेस्टेज और कुछ नहीं. ये लोग विश्वास करते थे कि त्रिरत्न के ऊपर में, 3 jewels. दिस वाज द एसेंशियल फॉर गुड लाइफ. दैट वाज द राइट फेथ, राइट एक्शन, राइट नॉलेज. So these 3 things were called the 3 jewels or the 3 ratnas. So this was the message of Mahavir. It became so famous and so many people also converted, means changed their lifestyle towards the Jainism and they became the Jaina. And Jainism को वो लोग adopt किए थे. They adopted, many people of India they adopted the Jainism. Then the message of Mahavir means that is the basic ideas of Jaina philosophy. When the monks and nuns of Jainism they entered, means they entered in that monastic and that time they took the 5 vows, means ये 5 प्रतिज्ञा उन लोग को लेना पड़ता था. मतलब monks and nuns को, मतलब सन्यासी एंड सन्यासिनी को, जो लोग जैन आश्रम में ज्वाइन करना चाहते थे उन लोगों के लिए 5 vows था. कि ये था टू abstain from killing, to abstain from stealing, to abstain from lying and to observe celibacy, to abstain from possessing property. मतलब किसी को मारना नहीं, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, अविवाहित रहना मतलब बैचलर लाइफ लीड करना और किसी का प्रॉपर्टी के ऊपर में नजर नहीं डालना. ये 5 प्रतिज्ञा करके ये लोग आकर के ज्वाइन करते थे एज ए मॉन्क और एज ए नॉन्स. So this was the message of Mahavir and basic ideas of Jaina philosophy. Next, the spread of Jainism. ये तो था मैसेज. अभी हम लोग देखेंगे कि जैनिज्म क्यों इतना फेमस हुआ था और कैसा स्प्रेड हुआ था पूरा ऑल ओवर द इंडिया. So Jainism spread in different parts of India and scholars also produced and created a sound literature in different languages. Okay, because now we'll discuss about that, and many manuscripts also preserved. So the teachings of Mahavir were recorded by his disciples. जितना सारा चीज महावीर ने अपना लाइफ में टीचिंग दिए थे आफ्टर हिज डेथ, इट वेर रिकॉर्डेड बाय हिज डिसिप्लिन. इन लोग का मतलब महावीर का शिष्य के माध्यम से ही ये टीचिंग का रिकॉर्ड किया गया था, मतलब सुरक्षित करके रखा गया था उन लोग के, उनका शिष्य लोगों के माध्यम से. एंड दीज वेर इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज व्हिच कुड अपील टू ऑर्डिनरी पीपल. ऐसा स्टोरी के आकार में भी उसको लिखा गया था जो कि ऑर्डिनरी पीपल को भी सूट कर रहा था और लोग पढ़ के ये जैनिज्म के प्रति उनका जो इंटरेस्ट बढ़ रहा था. Then Jaina scholars produced a wealth of literature in a variety of languages such as Prakrit, Sanskrit and Tamil. मतलब ये 3-4 भाषा जो था important language था and preserved in libraries attached to temple. Temple में attach होने वाला libraries में ये सब मतलब language में लिखा हुआ जो लिटरेचर, क्योंकि ना जैन स्कॉलर्स एक तो लिटरेचर का वेल्थ, मतलब बहुत लिटरेचर में उन लोगों का बहुत नॉलेज था और ये सब भाषा में ये जो स्टोरीज को और ये जो टीचिंग ऑफ महावीर का टीचिंग को प्रिजर्व करके रखे हैं. Gradually
जैनिज्म स्प्रेड टू मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। धीरे धीरे इंडिया का बहुत सारा जगह में जैनिज्म का स्प्रेड हो गया था एंड मेनी पीपुल adopted that Jainism. And many stone sculptures also we can see in India, throughout India, and it connected with the Jaina traditions have been recovered from several sites. हम लोग इंडिया में बहुत सारा साइट्स में बहुत सारा स्टोन स्कल्पचर अबाउट जैनिज्म रिलेटेड स्टोन स्कल्पचर जो है हम लोग देख पाएंगे इंडिया का बहुत सारा सेवरल साइट्स में। सो ऐसा होकर के जैनिज्म का स्प्रेड हुआ था। सो अबाउट दैट जैनिज्म only we have discussed in this video. So you have to write down the important points after listening that slides and also the video. And the next slide means the next video I will discuss with you about the Gautama Buddha, means the most important ancient religion of our India, that was the Buddhism. Okay, till then, bye.